बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. Dear students, we start our today's class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 7 and the period is Islamiyat. This is our last video class. The video number is 5 and this is week 1 to 7, the review of week 1 to 7. Students, as you know, in our previous class we had completed our third chapter Zakat. This is the last chapter. We had studied the third part, subjective studies. With this chapter we had completed our third part of the midterm content, subjective studies, and we also had completed our midterm content. So today in this class, in this week 7, first of all we have the review of midterm content at a glance. So in this class we will review our whole midterm content, what content we had studied from week 1 to week 7. So let's start. So in this midterm content, our first part is the Holy Quran part, and in this part first we have the reading of piece number 14 and 15. Reading of piece number 14 and 15 हमारे content में हमारे पास नाजरा में ये तीन चीज़ें इंक्लूडेड हैं. सबसे पहले रीडिंग ऑफ पीस नंबर 14 एंड 15. वी हैव द रीडिंग ऑफ पीस नंबर 14 एंड 15 जिसकी प्रैक्टिस करनी है. 14 एंड 15 पारा की रीडिंग की आपने. दिस विल बी टेकन एज योर नाजरा इन एग्जाम्स.
The next is the Surah Al-Rahman verses 1 to 38. We have the memorization of Surah Al-Rahman. Surah Al-Rahman is the Madni Surah and according to Quranic order its number is 55 and Surah Rahman को कुरान शरीफ की जीनत भी कहा जाता है. Surah Rahman I hope आपने मेमोराइज कर ली होगी. तो the next in this Holy Quran portion we have the Surah Al-Rahman verses 1 to 38. You have to memorize this whole surah 1 to 38. The next is supplication 1 and 2. Supplication 1 and 2 is included from your book. Supplication 1 which is for increase in earning. रिस्क पे बरकत के लिए जो दुआ है सप्लिकेशन है वो आपके लिए आपके कंटेंट में इंक्लूडेड है. एंड द सेकंड सप्लिकेशन इज रिलेटेड टू इफ़ एनीथिंग गोज अगेंस्ट योर विल रिसाइट द फॉलोइंग सप्लिकेशन. ये दोनों सप्लिकेशंस आपके बुक पेज 8 पे सप्लिकेशन नंबर 1 एंड सप्लिकेशन नंबर 2 इज गिवन ऑन दिस बुक पेज 8. सो दीज टू सप्लिकेशंस आर इंक्लूडेड एंड these supplications Surah Al-Rahman and reading of piece number 14 and 15, this is the oral, this is all related to your oral part in this midterm content. The next is the written part in which we have Surah Al-Qariya. Surah Al-Qariya is the Makki surah and according to Quranic order its number is 101. Surah Al-Qariya के अंदर हमें ट्रांसलेशन सूरह अल-कारिया की पढ़ी और सूरह अल-कारिया में हमें ये जो है वो टीचिंग्स मिली कि डे ऑफ जजमेंट यानी कि आखिरत के रोज़ जो है वो हमारे पास जो हमारी गुड डीड्स होंगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसका रिवॉर्ड मिलेगा. अगर हमारी डीड्स अच्छी होंगी, गुड डीड्स होंगी तो हमें उसका रिवॉर्ड अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा. और अगर हमारी डीड्स अच्छी नहीं होंगी, अगर हमने अच्छे अमाल नहीं किए होंगे तो हमारा जो है वो हमारे लिए जो है वो आखिरत में फिर कोई रिवॉर्ड नहीं है. हम फिर जो है वो हेल फायर में चले जाएंगे यानी कि दोज़ख में चले जाएंगे. तो सूरह अल-कारिया में हमने ये स्टडी किया था. सूरह अल-कारिया की एक्सप्लेनेशन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, अरेबिक ट्रांसलेशन, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन योर रिटन एग्जाम. द नेक्स्ट वी स्टडीड इज एप्लीकेशन ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एंड दिस एप्लीकेशन इज़ प्रेजेंट इन योर कंटेंट. कंटेंट में आपके गिवन है, आपकी बुक में गिवन नहीं है, आपके जो है वो कंटेंट में गिवन है. ये Quranic supplication and this will be given in your exam written. Quranic supplication of Hazrat Nuh alayhi salam. Okay, this. With translation, this supplication with translation. So this is all about the Holy Quran part which we had studied in our midterm. The next part we studied in our midterm content is the instructions of Holy Prophet, peace be upon him. In this part we studied the hadith of Nabi sallallahu alaihi wasallam. In this part we have studied the two hadith, hadith number 1 and hadith number 2. hadith number 1 किससे रिलेटेड है? hadith number 1 में हमने स्टडी किया था कि I am reading the translation of this hadith. When people are standing for prayers, do not run to join them, but walk calmly and with dignity. Perform whichever part of the prayer you get, the rest you have missed, make it up later. तो इस हदीस में हमें ये टीचिंग्स मिली, इस हदीस में हमें ये सबक मिला, ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जब भी कोई शख्स नमाज के लिए जब भी अजान की आवाज़ सुने तो वो उस वक्त अजान की आवाज़ सुन करके कोई भी काम अगर कंटिन्यू है तो उसको स्टॉप कर दे और नमाज़ की तैयारी करे. नमाज़ की तैयारी फ़ौरन करनी है, अजान की आवाज़ सुनते ही फ़ौरन प्रिपरेशन करनी है नमाज़ की. और अगर किसी काम में स्टक हो गए हैं जिसकी वजह से आपने फ़ौरन अपनी जो है नमाज के लिए आप नहीं जा सके, तो अगर थोड़े लेट जा रहे हैं तो उस वक्त आपने मैनर्स फॉलो करने हैं, सिविलाइज मैनर्स से आपने जाना है, वज़ू परफॉर्म करके जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए और भाग के और दौड़ के नहीं जाना. अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है कि उसके घर मस्जिद नमाज भाग करके और दौड़ के आया जाए. तो उसके लिए मैनर्स है, आराम से जाना है, जल्दी नहीं करनी. और जो रकात ऑफ प्रेयर्स मिस हो जाए वो जमात के बाद पूरी कर सकते हैं उसको, रकात ऑफ प्रेयर्स को. तो ये हदीस नंबर 1 की टीचिंग्स हमने स्टडी की थी. नेक्स्ट हदीस वी हैव इज़ related to fasting. I am again reading this translation. A person who is fasting gets double the joy, one when he breaks his fast and another when he meets his Lord. तो ये जो सेकंड हदीस है इसमें हमने ये स्टडी किया था, हमें ये टीचिंग्स मिली थी कि रोज़ेदार
यानी कि जो पर्सन फास्ट करता है उसके लिए 2 खुशियाँ हैं, 2 उसके लिए रिवॉर्ड हैं, 2 तरह से उसको खुशी हासिल होती है जब वो रोज़ा रखता है। एक खुशी उससे उस वक्त हासिल होती है जब वो रोज़ा अपना अफ्तार कर रहा होता है, उस वक्त उसको एक खुशी हासिल होती है, यानी कि वो नेमतें जो उसके सामने होती हैं रोज़े के वक्त, जो उसको अल्लाह ताला ने उसको नेमतें दी होती हैं, उसको वो उनसे अफ्तार करने से पहले उनका शुक्र अदा करता है उन नेमतों का, और अल्लाह ताला की दी हुई खुशी को जो है वो रिवॉर्ड समझ के, ब्लेसिंग समझ के उसको शुक्रगुजार होता है। नेक्स्ट उसको जो है वो सेकंड उसको जो खुशी है उसके लिए वो डे ऑफ जजमेंट, यानी कि आखिरत के रोज़ उसको वो खुशी मिलेगी जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा, तो वहाँ पे जो उसने फास्टिंग की है उसके बदले उसको बहुत सा अजर और इनाम मिलेगा। तो ये उसके लिए दूसरी खुशी है जो उसको डे ऑफ जजमेंट यानी कि आखिरत में मिलेगी अल्लाह से मुलाकात के बाद, ठीक है। So these 2 hadiths we have studied in this part, instructions of Holy Prophet, peace be upon him. The next we studied is the third part, subjective studies. So in this third part we have the 3 chapters. In this part, the first chapter is the subjective is the funeral prayer, means नमाज जनाजा। इस चैप्टर में हमने स्टडी किया, we have studied the importance and excellence of obligatory and congregational worships, mean हमारे जो है वो हमारी इबादत में जो इज्तिमाई इबादत हैं, जैसे कि नमाज जनाजा है, फ्यूनरल प्रेयर है या फ्राइडे प्रेयर है, या इसके अलावा जो ईद की जो प्रेयर्स होती हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने इसमें जो है वो फ्यूनरल प्रेयर में हमने ये इसके बारे में स्टडी किया। तो फ्यूनरल प्रेयर होती क्या है? फ्यूनरल प्रेयर नमाज जनाजा क्या होती है? वो नमाज जो कि कोई शख्स जिसका इंतकाल हो जाए तो उसके इंतकाल के बाद जो उसके फैमिली मेम्बर्स, जो उसके रिलेटिव्स, जो उसके फ्रेंड्स उसके लिए ऑफ़र प्रेयर करते हैं, वो प्रेयर कहलाती है फ्यूनरल प्रेयर। उसके लिए वही सेम कंडीशंस हैं जो कि ऑब्लिगेटरी प्रेयर के लिए होती हैं, मींस क्लीनलीनेस, वज़ू एंड फेसिंग द काबा, वज़ू का होना, काबा को फेस, काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना, और यानी कि पाक साफ होना। इसके अलावा जो और कंडीशंस हैं, स्पेशल कंडीशंस फॉर फ्यूनरल प्रेयर आर, द फर्स्ट इज़ डेड पर्सन मस्ट बी मुस्लिम, जो डेड पर्सन है उसका मुसलमान होना और उसने अपने पेरेंट्स का मर्डर नहीं किया हो। थर्ड, अगर वो डेड पर्सन बच्चा है और एट द टाइम ऑफ बर्थ वो उसने दुनिया में आकर के कुछ टाइम स्पेंड किया, आँख खोली, तो उसकी नमाज जनाजा होगी, और अगर वो जो है वो उसकी बर्थ के टाइम ही वो डेड हुआ तो उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी, ये इसकी कंडीशन है। और लास्ट कंडीशन क्या है कि जो ब्यूरियल गारमेंट है यानी कि जो कफन है उसका पाक साफ होना, उसका क्लीन होना। इसके अलावा वी हैव द कंपलसरी कंडीशंस ऑफ फ्यूनरल प्रेयर, वी स्टडीड द 2 कंपलसरी कंडीशंस आर, द फर्स्ट इज़ 4 तकबीर्स, 4 तकबीर्स इसमें रिसाइट की जाती हैं, और वो 4 तकबीर्स के मीनिंग ये है कि 4 रकात ऑफ प्रेयर्स हमारे पास होती हैं फ्यूनरल प्रेयर की। और सेकंड इसकी कंपलसरी कंडीशन ये है कि फ्यूनरल प्रेयर स्टैंडिंग पोजीशन में क़याम होता है, इसमें मीन्स स्टैंडिंग पोजीशन में फ्यूनरल प्रेयर ऑफ़र की जाती है, खड़े खड़े नमाज अदा की जाती है फ्यूनरल प्रेयर। द नेक्स्ट इज़ द सुन्ना, एंड देन वी हैव स्टडीड द वैल्यू ऑफ फ्यूनरल प्रेयर। फ्यूनरल प्रेयर जो है वो क्या है? फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़र्ज़ कफ़ाया को क्या एक्सप्लेन किया था? फ़र्ज़ कफ़ाया जो है वो फ़र्ज़ जो कि अगर सोसाइटी में कुछ लोग अदा कर लें तो वो पूरी सोसाइटी में तमाम लोगों की तरफ से, जिन लोगों ने अदा नहीं की हो, जो मिस कर देते हैं, उनकी तरफ से भी वो प्रेयर जो है वो अदा हो जाती है। देन वी हैव स्टडीड द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग फ्यूनरल प्रेयर, एंड द मेथड इज़ फर्स्ट टाइम तकबीर रिसाइट करके नियत बानेंगे, तकबीर तहरीमा रिसाइट करेंगे, और उसके बाद जो है वो सना रिसाइट करनी है। सना रिसाइट करके हैंड्स फोल्ड करने हैं। फर्स्ट टाइम तकबीर रिसाइट करके हैंड्स को फोल्ड करना है, देन सना रिसाइट की जाएगी। सना के बाद दोबारा तकबीर रिसाइट करनी है, फिर सेकंड टाइम तकबीर रिसाइट करने के बाद दुरूद इब्राहिमी रिसाइट करना है। उसके बाद 4 टाइम तकबीर रिसाइट करके सप्लीकेशन फॉर द डिजीज़ है वो पढ़नी है। उसके बाद दोबारा तकबीर रिसाइट करनी है, लास्ट रकात ऑफ प्रेयर है, इसमें रिसाइट करने के बाद जो है वो अपनी नमाज़ को जो है वो ख़त्म कर लेना है। लेफ़्ट और राइट पे सलाम फेर करके नमाज़ ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह 4 टाइम्स तकबीर रिसाइट करनी है, और हर बार तकबीर रिसाइट करनी है। उसके लिए आपको अपने हाथ नहीं छोड़ने, अपने हाथों को फोल्ड किए हुई जो है हाथों को बांधे हुए ही तकबीर जो है रिसाइट होती है। और सप्लीकेशन यहाँ पे गिवन है, सप्लीकेशन फॉर द डिजीज पर्सन, मैन और वुमेन के लिए सेम सप्लीकेशन है, और जो यंग इमेच्योर्ड बॉय और यंग इमेच्योर्ड गर्ल के लिए अलग अलग सप्लीकेशंस हैं, वो रिसाइट की जाती हैं फ्यूनरल प्रेयर में।
इसके अलावा वी हैव स्टडीड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन फ्यूनरल प्रेयर, यानी कि फ्यूनरल प्रेयर जो है उसको अटेंड करने की क्या अहमियत है, उसको अटेंड क्यों करना चाहिए। इस्लाम ने हमें फ्यूनरल प्रेयर अटेंड करने के लिए जो है वो बहुत फोकस किया है, ज़ोर दिया है इस बात पे, ताकि जो है इससे क्या होता है, जो बीरीफ फैमिली होती है, जिस फैमिली में जिस पर्सन की डेथ हो जाती है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको उनके साथ कंडोलेंस करने के लिए, उनके साथ सिंपैथी करने के लिए, ताकि उनको हमसे स्ट्रेंथ मिले, वो जल्दी पेशेंट हो जाएं, उनसे हमें स्ट्रेंथ मिले, उनका गम हल्का हो जाए। इसलिए हमें जो है वो क्या करना चाहिए, फ्यूनरल प्रेयर अटेंड करनी चाहिए। इसका सवाब भी है, ठीक है। और देन वी हैव studied the next head, no wailing over the body of the deceased, means कि डेड पर्सन जो है उसकी बॉडी पे हमें कोई वेलिंग नहीं करनी, मतलब हमें जो है वो इस्लाम फॉरबिड करता है, मना करता है कि डेड पर्सन की बॉडी के ऊपर रोना, चिल्लाना या नोहा करना, तो ये सब जो है वो हमें इस्लाम टोटली इस चीज़ से रोकता है। द नेक्स्ट चैप्टर वी स्टडीड इज़ So, in this subjective studies, we study the next chapter, necessity and value of prophethood. In this chapter, we studied about the information of prophethood. मतलब prophethood, अकीदा रिसालत के बारे में हमें information दी गई है इस पर। सबसे पहले we have studied the meaning of prophethood. Meaning of prophethood मतलब रिसालत के मायने क्या हैं। The word रसूल का जो वर्ड है वो वर्ड रसूल से निकला है, और अरेबिक वर्ड में इसकी मीनिंग है सेंड, मीन्स सेंड करना, भेजना, ठीक है। और इस्लामिक कॉन्टेंट्स में रसूल की मीनिंग है कि अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो अल्लाह के बंदों तक कन्वे करना, प्रॉफिट के थ्रू। प्रॉफिट जो है वो क्या करते हैं, अल्लाह ताला के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक भेजते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को रिसालत कहते हैं। इस सिस्टम को, जो नॉलेज हमें प्रॉफिट आके फॉरवर्ड करते हैं, जो मैसेज देते हैं अल्लाह की तरफ से, इसको जो है वो क्या कहता है, इस सिस्टम को रिसालत कहा जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वी स्टडीड इज़ इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द नेसेसिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसालत, कि प्रॉफिट्स की जो है वो हमारी लाइफ में क्यों नीड हुई, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, हमारी प्रॉफिट्स हमारे लिए हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें इंसान को ज़रूरत क्यों हुई, प्रॉफिट्स का होना क्यों ज़रूरी था। तो इसमें हमें ये बताया गया कि हम इंसान इस दुनिया में आया, उस जो है वो ये दुनिया उसके लिए बनाई गई, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी उसके लिए बनाई गई। अब जो है वो उसके पास जो है वो उसके पास सेंस है, उसके पास अल्लाह ताला ने दो चीज़ें उसको दी, एक तो उसको सेंस दी, दूसरी चीज़ उसके पास जो है वो क्या है, उस सेंस के बाद इंटेलिजेंस, यानी कि उसकी अकल है। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए इंसान इस दुनिया के अंदर अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, ठीक है। अब उसको नहीं पता कि कौन सी चीज़ उसके फ़ायदे के लिए है, कौन सी चीज़ उसके नुकसान के लिए। तो प्रॉफिट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको वो नॉलेज और गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इल्म और वो उसको गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे इस दुनिया में उसके लिए जो है वो किस डायरेक्शन में उसने अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। तो प्रॉफिट्स आकर के इंसान को वो नॉलेज देते हैं जो कि उसको एक्सपीरियंस से नहीं मिलती, जो कि उसको अपनी सेंस से नहीं मिलती, जो कि उसको अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए नहीं मिलती। तो इसीलिए प्रॉफिट्स हमारी लाइफ में किसी भी इंसान की ज़िंदगी में प्रॉफिट्स की बताई हुई टीचिंग्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रॉफिट्स हमारे लिए अल्लाह ताला ने भेजे, ठीक है। आफ्टर दिस तो हमारा ये बिलीव होना चाहिए कि ये जो सिस्टम ऑफ नॉलेज है, जो प्रॉफिट्स आकर के हमको देते हैं, तो हमें जो है वो पता होना चाहिए कि डे 1 से प्रॉफिट्स इस दुनिया में आ रहे हैं। हज़रत आदम हमारे फर्स्ट प्रॉफिट थे, उसके बाद 1,24,000 मैसेंजर्स इस दुनिया में आए जिन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, और सबसे लास्ट प्रॉफिट हमारे हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हमारे लास्ट प्रॉफिट हैं। इन सारे प्रॉफिट्स को जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए, उन सबको नबी मानना, उन सबको प्रॉफिट जो है वो उनको मानना, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना, और फिर जो लास्ट प्रॉफिट है उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फ़र्ज़ है। इस पर बिलीफ रखना, कंप्लीट फेथ रखना, तो ये जो है वो ये हमारी ड्यूटी है।
द नेक्स्ट टॉपिक वी स्टडीड इज़ द प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रॉफिटहुड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है उसकी प्रोमिनेंट एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट वी हैड स्टडीज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में हमने स्टडी, यूनिवर्सल मीन्स कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स हैं वो तमाम इंसानियत के लिए हैं, तमाम लोगों के लिए हैं, किसी स्पेसिफिक नेशंस के लिए, किसी स्पेसिफिक कंट्री के लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि दुनिया में तमाम इंसानों के लिए उनकी टीचिंग्स हैं और हर एक के लिए यूज़फुल है। द नेक्स्ट इज़ एटर्नल टीचिंग्स मीन्स कि फॉर ऑल टाइम, यानी कि डे ऑफ जजमेंट तक, आखिरत के दौर तक, और शुरू से ये टीचिंग्स हमारे पास हैं तो हर दौर के लिए, हर दौर में अमल होने वाली ये टीचिंग्स जो है वो हर दौर के लिए, हर टाइम के लिए यूज़फुल और बेनिफिशियल हैं ये टीचिंग्स। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज़ कंप्लीट एंड परफेक्ट मीन्स कंप्लीट है, परफेक्ट है, हर तरह से परफेक्ट है, इसमें कोई लैकनेस नहीं है, कोई इम्परफेक्शन नहीं है, हर तरह से ये टीचिंग्स क्या है, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट हैं। एंड द लास्ट एट्रीब्यूट इज सील ऑफ प्रॉफिटहुड मीन्स, सील मीन्स कि आप सिस्टम के बाद जो है वो रिसालत का जो सिलसिला है उसको सील कर दिया गया, उसके ऊपर मोहर लगा दी गई। अब आपके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, फर्दर हमारे पास कोई टीचिंग्स नहीं आएगी, सिर्फ हॉली कुरान को ही हमने फॉलो करना है और आप जो टीचिंग्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए जो है वो अपनी लाइफ को, अपने लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके सॉल्यूशन देखना है। द थर्ड चैप्टर वी स्टडीड इज ज़कात। In this chapter we study the purpose of giving zakat and the importance and the proportion in which zakat should be given. So what is zakat? Zakat is the fourth pillar of Islam. zakat हमारे इस्लाम का फोर्थ पिलर है और एक इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, इनके फ़र्ज़ इबादत है। और ज़कात अरेबिक वर्ड है, अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है, उसकी मीनिंग है कि अपनी वेल्थ को प्योरीफाई करना, किसी चीज़ को पाक करना। तो मतलब इस्लाम में ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अपने जो वेल्थ है उसको प्योरीफाई करना, अपने माल को पाक करना। ज़कात देने से हम क्या करते हैं, अपने माल को प्योरीफाई करते हैं, पाक करते हैं। और ज़कात जो है वो कोई भी किस पे फ़र्ज़ है, ज़कात देना किस पे फ़र्ज़ है। जो भी रिच मुस्लिम हमारी सोसाइटी में होते हैं, जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास दौलत है, उनके ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ है। वो जो है अपनी वेल्थ में से शेयर रखते हैं एक पुअर मुस्लिम ब्रदर के लिए, पुअर जो गरीब मुसलमान भाई है उसके लिए अपनी वेल्थ में से शेयर रखते हैं। तो वो शेयर जो है वो उन्हें क्या करना है, अपनी वेल्थ से निकाल के अपने भाई को देना है, ठीक है। और उसके लिए जो वो क्राइटेरिया है, जो कॉन्सेप्ट है जो हमें इस्लाम देता है, प्रोपोर्शन जो बताई गई है वो है कि अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोलाज ऑफ गोल्ड हो, 7.5 तोलाज ऑफ गोल्ड हो, या फिर उसके पास 52.5 तोलाज ऑफ सिल्वर हो, 52.5 तोलाज ऑफ सिल्वर हो, या फिर इन्हीं के इक्वलेंट अमाउंट हो, इन्हीं के इक्वलेंट अमाउंट या मनी हो उनके पास, तो वो जो है उसमें से उस 7.5 तोलाज में से या फिर 52.5 तोलाज ऑफ सिल्वर में से उन्हें 2.5 की प्रोपोर्शन जो है 2.5% जो है वो ज़कात जो है वो मनी उनको गरीब भाई को देनी है। ये तो कैश दे दें या फिर जो है वो कैश ही देना होगा। सो दिस इज़ द प्रोपोर्शन। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट भी स्टडी थिंग्स ऑन विच ज़कात मस्ट बी गिवन। मतलब किसी के पास अब सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। हार्वेस्ट, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस करेगा उस पर, कैटल पे, एवरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे, एंड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। इन सब पे कुछ कंडीशंस हैं जो कि डिस्कस की गई डिटेल में अपनी क्लास में। तो इन सब पे जो है वो ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है, ठीक है। और अगर ज़कात जो है वो ज़कात नहीं दी जाती, ज़कात क्योंकि हमारे पास जो है वो किसी भी वेल्दी पर्सन के पास जो है वो क्या है, अपने पुअर मुस्लिम ब्रदर का शेयर है, उसकी अमानत है, उसका ट्रस्ट है। अगर वो उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा तो उसके ऊपर क्या है, पनिशमेंट है। इस्लाम ने उसके लिए पनिशमेंट रखी है, ठीक है। द नेक्स्ट वी स्टडी द एटिकेट्स ऑफ ज़कात। एटिकेट्स में हमने एटिकेट्स हमारे पास 5 एटिकेट्स थे। द फर्स्ट इज़ ज़कात जो है वो हलाल इनकम से दी जाएगी। ज़कात ऐसी चीज़, ज़कात में हमें अगर हमने कैश नहीं देना, कोई चीज़ देनी है,
ज़कात के जो है वो रिप्लेस में कोई चीज़ अगर कोई देना चाह रहा है तो उसको जो है वो गुड और न्यू होना है, मतलब उसको उस चीज़ का जो है वो नया होना या फिर उसका अच्छी कंडीशन में होना, ये कंपलसरी है। और इसके अलावा अगर किसी ने अपने इंटेंशन को प्योर नहीं रखा, यानी कि शो ऑफ की इंटेंशन से ज़कात दी या फिर उसने फेमस होने की इंटेंशन से ज़कात दी, तो उसकी ज़कात के बदले उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उसका जो है कोई अजर नहीं है, फिर उसकी ज़कात ऐसी कबूल नहीं होती। और फोर एटिकेट ज़कात का ये है कि ज़कात हमें ऑब्लिगेटरी प्रेयर समझ के अदा करनी है, ज़कात को एहसान के तौर पे नहीं अदा करना, तो ऐसी ज़कात का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और लास्ट एटिकेट ये है कि ज़कात जो है वो देते हुए हमें किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना, उसको हम विदाउट इन्फॉर्म किए हुए ज़कात दे सकते हैं। तो हमें ये ख्याल रखना है कि ज़कात हम विदाउट इन्फॉर्म किए हुए उस पर्सन को दे दें। दैन वी हैव स्टडीड द बेनिफिट्स ऑफ ज़कात। बेनिफिट्स ऑफ ज़कात में हमने स्टडी किया कि ज़कात से क्या होता है, ज़कात देने से हमें जेन्युइन प्लेजर मिलती है, यानी कि सच्ची खुशी मिलती है। और इससे इंसान क्या होता है, अब दुनिया में जो है वो ज़कात एक नेक काम है, इसको करके वो दूसरे नेक कामों की तरफ लग जाता है, दूसरे नेक अमल भी करने लगता है। सेकंड बेनिफिट जो है वो ये है कि ज़कात क्या करता है, इंसान की दौलत से मोहब्बत को कम करता है। इंसान जो है वो अपने पास फिर दौलत को जमा नहीं करने की हैबिट रखता, बल्कि वो फिर क्या करता है, अपने माल में से ज़कात के अलावा भी जो है वो दे रहा होता है। और थर्ड बेनिफिट में क्या होता है, इंसान को अल्लाह की राह में ख़र्च करने की आदत हो जाती है, अल्लाह की राह में ख़र्च करना उसकी हैबिट बन जाती है। एंड फोर्थ बेनिफिट इस ज़कात क्या करता है, हमारी सोसाइटी में ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा, मतलब जो सब आपस में भाई भाई बन जाते हैं। फिर जो है वो ये डिफरेंस ख़त्म हो जाता है कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। ज़कात क्या करता है, ये इस डिफरेंस को भी ख़त्म करता है और सोसाइटी में ब्रदरहुड को जो है क्या करता है, डेवलप करता है। और लास्ट इसका बेनिफिट ये है जो कि ज़कात का रिवॉर्ड है 70 टाइम्स, यानी कि ज़कात अगर कोई देगा तो उसको रिवॉर्ड 70 टाइम्स मिलेगा। और अल्लाह ताला जो है क्या करता है, उसकी ज़कात को जो है वो उसके पैसे में जो है उसकी वेल्थ में बरकत होती है। ज़कात देने से किसी के माल में जो है वो कमी नहीं होती, बल्कि ये और बढ़ता है ज़कात देने से। So this is all we studied in these chapters in the third part of our midterm content subjective studies. After this I am going to, after giving the review of this midterm content, now let's briefly discuss about the paper pattern. So in our paper first we have the section A, MCQs. 10 MCQs will be given to you in section A. The next part is section B. This is the short answer questions, in which we have question number 2A, which is related to your oral exam, and in this we have the reading of piece 14 and 15 and Surah Al-Rahman, the verses of Surah Al-Rahman जो कि आपका ओरल सुना जाएगा। सप्लीकेशन फ्रॉम योर बुक, सप्लीकेशन 1 and 2 आपको जो है ओरल सुनानी होगी, ठीक है। द नेक्स्ट इज द रिलेटेड टू योर रिटन एग्जाम। फिर ये रिटन है, यहाँ पे इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स गिवन होंगे, जिसमें से 7 या 8 पार्ट्स होते हैं और उसमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। द नेक्स्ट इज सेक्शन सी। So in this third part, in this section C, this is the descriptive part. In this we have the descriptive answer questions. Question number 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B.
means in this part you have to attempt any 2 questions, but question number 3 is compulsory. Question number 3 is compulsory question. So this is how you have the paper pattern in the midterm. Section A is the MCQs, section B is the short answer questions, and section C is the descriptive part, in which you have to attempt any 2 questions, but question number 3 is compulsory. After discussing the review and paper pattern, now let's move towards the closing of your copies. Closing of your copies. So for closing your copies, first of all you have to make the content of mid-examination. So students, after completing your all work from week 1 to week 6, after the completion of all work, then you will make this content of mid-examination. Okay, so this is how you will make this content, and after making this content, make the closing page. So this is how you will make the closing page, by writing first semester midterm has completed. And after closing your copies, you have to make the closing in your index as well. So this is how. First of all, you have to maintain the index page. You have to maintain the index very properly, update it date wise and week wise, and I have a properly indexed maintained page. As I am showing you, this is how you will maintain your index page from week 1 to week 6. So at the closing you will mention midterm has been completed. So this is how you will close your copies and your index. Students, make sure you are completing your work from week 1 to week 7. Properly complete your work, and then you are instructed to submit your copies in school for checking purpose, and use the content solutions to complete your work, and watch the videos for understanding the explanation of these midterm content. Okay. Parents are also advised to prepare their children for examination. And students, best of luck for your papers. After the arrival in school, inshallah, midterm exam will be conducted. So take care, and Allah Hafiz.